ذکر لینا ہو وہ آگے تشریف لے آئیں. کافی دوست کافی محافل سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ذکر لینا ہے. جن دوستوں نے ذکر لینا ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. جو گھر سے ذکر لینے کا ارادہ کر کے تشریف لائے ہیں وہ آگے آ جائیں. الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ سب ساتھیوں کو سلسلہ عالیہ مجددیہ کا پہلا سبق دیا جا رہا ہے. سلسلہ عالیہ مجددیہ سیفیہ کا. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ نے جس ڈیوٹی پر بٹھایا ہے تو ہمیں اس ڈیوٹی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آگاہ بھی فرمایا ہے. جو سچے مشائخ کے مرید ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی سے بیعت نہ ہو. ٹھیک ہے. اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور سے جا کر مرید ہونا یہ اپنے شیخ کی توہین شمار ہوتی ہے. تو ہم کسی شیخ پر تبصرہ کیے بغیر یہ جنرل بات کر رہے ہیں. ابھی میں نے پیر صاحب گمگور شریف کے بارے میں بات کی. پیر صاحب گمگور شریف کی ولایت کا خود مجھے مشاہدہ ہوا ہے. میں کسی کی سنے سنائی بات نہیں کرتا. وہ اللہ کے سچے محبوب ہیں. ان کے جو مرید ہیں وہ ذرائع راست پر ہیں, وہ صراط مستقیم پر ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, آج کا جو ذکر دوستوں نے بہت سارے احباب شامل ہوئے ہیں تو اور بہت پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ. پہلی بات یہ کہ ہماری محفل میں ان پڑھا ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے تقریباً 99% ساتھی گریجویٹ ہیں یا کم از کم میٹرک تو ہر ایک کوئی ہے. اس لیے ہمیں یہ کبھی دشواری پیش نہیں آتی کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. جو بات ہم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی منزل پہ پہنچتی ہے. کالج یونیورسٹیوں کے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کے مختلف شعبوں میں انتہائی پڑھے لکھے لوگ کام کرنے والے پروفیسرز لائرز بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی بات سمجھانے میں دشواری پیش نہیں آتی. آپ سوال کیا کریں اور کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی جب آپ کو بیعت کے لیے یہاں آپ تشریف لائے, آپ کے ذہن میں بیعت کا کیا تصور تھا؟ بیعت کیا ہوتی ہے؟ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جن قابو کرنا, یا ان سے ہم ذات قابو کرنے کے وظیفے پوچھنا, یا دولت حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا؟ اگر بیعت کا ذہن میں یہ تصور ہے تو بالکل باطل تصور ہے. بیعت کا تصور یہ ہے کہ میں حضور کا کلمہ گو مسلمان ہوں. اچھی طرح ان کنسیپٹس کو سمجھیے. میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں, حضور کا غلام ہوں, اور چونکہ ہمارے حضور کو گناہوں سے نفرت تھی, گناہوں کو مٹانے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے, لہٰذا میں حضور کے مشن پر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اپنی توبہ کا گواہ بنانے کے لیے ایک شخصیت کو منتخب کیا کہ یہ میری توبہ کے گواہ ہیں. یہ بیعت کا ایک پہلو ہے. جب آپ کے ذہن میں گناہ کو ترک کرنے, گناہ کے ساتھ جنگ کرنے اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے اور نفس کی قدورتوں کے خلاف جنگ کرنے کا یہ بنیادی تصور آ گیا
यानी तौबा। बैत की पहली शर्त क्या है? तौबा। बैत तौबा होती है। ये अभी जो हमने पढ़ा था ना कि अलामा क्या पढ़ा था हमने? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह से मैं सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है ना? अभी अल्लामा से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप वो सारी दुआएं कुरान पाक की जितनी भी ज़हन में आ रही हैं, सारी तो नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भी ज़हन में आ रही हैं वो सारी की सारी दुआएं दोस्तों को सुनाएं। अब कुरान पाक में से आप वो दुआएं पढ़ा करें, जल्दी कबूल होती हैं। अल्लाह की बारगाह में आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूं जो मेरा रब है, अपने पालने वाले से अपने गुनाहों पर मुआफ़ी का खास्तगार हूं। व अतूबु इलैहि, और मैं उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूं। यानी अब हमारी जो मंजिल बन गई है वो अल्लाह बन गया। ये बैत है। अब अल्लाह की तरफ जाने में आपने क्या क्या करना है? अल्लाह तक आप उस वक्त तक नहीं पहुंच सकेंगे कि जब तक अल्लाह की महबूब चीजों से प्यार नहीं करेंगे। ठीक है? जो अल्लाह को पसंद है वो आपको पसंद हो, जो अल्लाह को नापसंद है वो आपको नापसंद हो। अब इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह को, कायनात की हर चीज जो है अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, अल्लाह को याद करती है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ भी है जमीन में और आसमान में, जो कुछ भी कायनात में है, उसने अल्लाह को याद करना अपनी एक आदत बना रखी है। हमें समझ आए या ना आए, कोई सुने या न सुने, कोई समझे या न समझे, लेकिन हर चीज कायनात की अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने अपने अंदाज में याद कर रही है। ठीक है? और हर चीज को अल्लाह के साथ एक ताल्लुक हासिल है, लेकिन सबसे प्यारा ताल्लुक होता है दोस्ती का। ठीक है? दरख्त अल्लाह की तस्बीह करता है, लेकिन यह नहीं दावा कर सकता कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। पत्थर तस्बीह करता है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। सूरज, चांद और सितारे अपनी अपनी मजलूम की तरफ रवां दवा हैं, जिक्र और तस्बीह और तालील में मसरूफ हैं, लेकिन यह दावा नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। लेकिन कुछ हस्तियां इंसानी दुनिया में या फरिश्तों की दुनिया में भी अल्लाह के दोस्त हैं ना। तो जिन्नात की दुनिया में भी 800 नबी गुजरे, जिन्नात में से 800 नबी गुजरे और खुदा के बंदू ने सबको शहीद किया। ये इतनी जालिम मखलूक है जिन्नात। अगर जिन काबू करने हो ना, तो याद रखो, जिन्होंने नबियां के नहीं छोड़ा तो सारे में मकूठा पी सकने। अच्छा, इसलिए जिन काबू करने का जो फार्मूला है ना उसको छोड़ दें। हाँ, इनको वैसे ही भटकने दें, तब जाकर हदीस पाक में मजमून मिलता है कि इंसानियत को नबुवत मिलने से पहले जिन्नात के पास नबुवत की मंजिलें थी और 800 अंबिया गुजरे थे, जिनमें से उन्होंने 800 के 800 को शहीद किया। तो अब इंसान को चाहिए कि इस बात से सबक सीखे कि जिन्होंने अपने नबियों को नहीं छोड़ा, आप उनके कुछ नहीं लगते। सच्ची बात है। जिन्नात के पुरस्कार हालात हिफ्ज़ुर रहमान से आ रही। ठीक है? अल्लामा का रेफरेंस समझा रहा हूं कि अगर देखना पड़े, इमाम स्यूती ने भी इस पर एक किताब लिखी है जो जिन्नात के हवाले पर है। मलाइका के हवाले पर भी है, जन्नत के हवाले पर भी है और जिन्नात के हवाले पर भी। अल्लामा स्यूती की 3 किताबें। अच्छा, अब जनाब, कायनात की कोई शय यह दावा नहीं कर सकती कि हम अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन इंसानी दुनिया में या जिन्नात, फरिश्ते, उनको तो उनका अपना डिपार्टमेंट है। इंसानी दुनिया में
اللہ پاک نے کچھ کو منتخب کر کے فرمایا کہ اللہ، آگے یاد ہے نا، اللہ مشہور آیت، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو ماضی حال مستقبل میں کہیں بھی نہ خوف ہوا نہ ہوگا۔ اب اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ سنا ہے کہ دوستوں کے راستے سے ملاقات جلدی ہو جاتی ہے، عام دنیا کا قانون ہے۔ کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کا لنک تلاش کرتے ہیں، اس کے رولز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس سے ملنے کا پروسیجر کیا ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر تلاش کرتے ہیں، کہ اس کا فیکس نمبر تلاش کرتے ہیں، اس کا موبائل نمبر تلاش کرتے ہیں، اس کا دوست تلاش کرتے ہیں، اس کا کوئی عزیز تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ایک چینل ہے کائنات کے اندر۔ پروردگار نے بھی اگر اللہ رب العزت ایک ایک قرآن اوپر سے جبریل کو دے کر یا سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے کہ جاؤ پوری کائنات میں نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں جاؤ اور ایک ایک قرآن سب کو دے آؤ، پاسبل تھا کہ نہیں تھا؟ بلکہ قرآن کی بھی ضرورت کیا تھی؟ خدا اگر اپنے ہر بندے کو یوں ہی معرفت دے دیتا، کیا ضرورت تھی قرآن کی؟ ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جبریل سے کہا پہلے تم لو، پھر جاؤ مدینہ طیبہ شریف کی سرزمین پر یا مکہ المکرمہ کی گلیوں میں جاؤ، اور کبھی ان صحراؤں میں جاؤ جہاں میرا محبوب ملے گا، کبھی طائف کے ان نخلستانوں میں چلے جاؤ، وہاں میرا محبوب زخمی بیٹھا ہوگا، اس کے پاس چلے جاؤ، کبھی تم ان جبل نور پہ چلے جاؤ، میرا محبوب روتا نظر آئے گا، اس کو یہ میرا پیغام دے آؤ۔ بندہ تو واسطے کا محتاج ہے، رب تو واسطے کا محتاج نہیں ہے۔ علامہ قاعدے کی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ واسطے کا محتاج ہو سکتا ہے، رب واسطے کا محتاج نہیں ہے، لیکن رب نے یہ بتانا چاہا کہ محبتوں کے چینل ہوا کرتے ہیں۔ ہاں جی، نور، نوری کو دینا، یہ میری محبت کا چینل ہے۔ صرف پیدا کرنا میری قدرت کا چینل ہے، میرے خلق اور تکوین کا چینل ہے۔ لیکن نوری کو قرآن دے کر انوارات کو لے کر ترسیل کرنا، جاؤ فلاں فلاں مقام پہ فلاں ہستی کے پاس اور ان کو جا کر میرا پیغام دو اور محبتوں برے سلام دو۔ قرآن پاک میں جو فرمایا گیا وسلام علی المرسلین، یہ سلام رب کی طرف سے ہے نا۔ میں نے قرآن عظیم الشان کو ایک دفعہ اسٹڈی کیا تو تقریباً 23 غالباً جو میں نے اس وقت جو ریسرچ کی تھی 23 سلام ہے قرآن پاک میں، جو مختلف مقامات پر جن کا ذکر آیا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر سبب ایک چینل ہے، اس طرح محبت کا بھی ایک چینل ہے۔ تو جس چینل سے قرآن آیا ہے اسی چینل سے ہم ادھر جا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ سڑک جو ہے ہماری، یہ جو باہر سے گزر رہی ہے، یہ کچہری سے گزر کے آگے روات اور سیدھے آگے لاہور نکل جاتی ہے کہ نہیں نکل جاتی؟ کراچی چلی جاتی ہے نا، تو کراچی سے یہاں بھی تو آتی ہے نا، کہ ادھر ہی جاتی ہے؟ اگر یہاں سے کراچی جاتی ہے نا تو کراچی سے یہاں بھی تو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب رب نے جو چینل نوری چلایا ہے، اس نوری چینل سے رب نے ہمیں اپنی معرفت بھیجی ہے، عطا کی ہے، ترسیل فرمائی ہے۔ روح الامین سے کہا کہ قلب مصطفیٰ پہ یہ نور جا کر پیش کر دو، قلب مصطفیٰ سے قلوب صحابہ میں، قلوب صحابہ سے قلوب تابعین میں، قلوب تبع تابعین میں،
और फिर कुलूब औलिया से होता होता कल्ब दर कल्ब, कल्ब दर कल्ब, कल्ब दर कल्ब, कल्ब दर कल्ब मिरिड हसन में। ठीक है, तो जिस चैनल से ये नूर आया है तो उसी चैनल से आप ट्रेवल बैक भी कर सकते हैं। एक रोशनी जो किरण इधर से आ रही है, इस किरण का राब्ता इधर भी है, मतलब सूरज है, सूरज की किरण अगर यहां पड़ रही है तो वहां से यहां भी आ रही है, यहां से वहां भी जा रही है। ठीक है, अब दो किस्म के तबके हैं। एक ज़हन की दुनिया के लोग हैं, याद रखेगा, ज़हन की दुनिया के लोग हैं जो इल्म पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, और थिंकिंग की दुनिया के लोग हैं, यानी सोचने की दुनिया के लोग। जब उनसे पूछा जाएगा 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 का हमेशा वो जवाब 4 ही देंगे। क्यों? कि वो सोचने वाले लोग हैं। और जब उनसे 4 और 4 की जमा पूछी जाएगी तो वो 8 ही कहेंगे। ठीक है, अगर आप सारी जिंदगी का एक सर्वे करें, इंसान ने अपने जहन को, थिंकिंग को इस्तेमाल किया है, माइंड का लफ्ज़ जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, रूहानियत की तरफ भी जाता है, ब्रेन को इस्तेमाल किया, ब्रेन को इस्तेमाल किया और जिंदगी का पूरा फ्रेमवर्क वज़ा किया, पूरा स्ट्रक्चर बनाया, और यहां तक कि आप जिंदगी की किसी भी चीज को इंसानी इंटेलेक्ट से या जहन से या ब्रेन से जुदा नहीं कर सकते। उधर एक और तबका भी पाया गया जो एहसास की दुनिया का तबका है। एहसास का मरकज कल्ब है। ज़हन ने सोचा, तज्जिया किया और जहाने गैब में टटोलता रहा, जो कुछ भी मिलता रहा लाला के जमा करता रहा। एहसास जो जिसका मरकज कल्ब है, वो जब भी किसी बात को महसूस करता है तो उसका मुशाहदे की कोशिश करता है। ठीक है, अब एक अप्रोच उलमा वाली है, आले इल्म वाली है। ये हमारे दरसगाहें, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़, ये हमारे कॉलेजेस, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस और ये हमारे जो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन हैं, ये सारे के सारे थिंकिंग की दुनिया से उन हकायक को तलाश करने में मसरूफ़ हैं कि जो इनविजिबल हैं, ना नजर आने वाले हैं, ना समझे जा सकने वाले हैं आम हालात में। ये उनकी तलाश में। दूसरी दुनिया है दिल वालों की दुनिया, कल्ब वालों की दुनिया है। उन्होंने कहा कि वो गैर मुदरकात का मतलब होता है वो चीजें जो इदराक में ना आ सकें, उनको कैच करने के लिए या उन तक रसाई करने के लिए, उन तक अप्रोच करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी बदन में एक आला रखा है जिसका नाम कल्ब है, मरकज़े एहसास है। अब जब आप अपने दिल में एहसास जिंदा करेंगे, अपने दिल में एहसास जिंदा करेंगे, अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहेंगे जब आप अपने दिल को सेंसिटाइज करेंगे, दिल की सेंसिटाइजेशन करेंगे, दिल को सेंसिटिव बनाएंगे, हसास बनाएंगे, तो उस वक्त दिल अपना काम शुरू कर देगा। जितना एहसास बढ़ता जाएगा कल्ब जिंदा होता चला जाएगा। कल्ब की जिंदगी एहसास की जिंदगी है। और कल्ब का पहला एहसास क्या है? आप सब बड़ी महफिल से सवाल है। अब मैं देखता हूं इस सवाल का सबसे पहला जवाब कहां से आता है। पूरी भरी महफिल से मेरा सवाल है कि कल्ब का सबसे पहला एहसास क्या?
इतना सादा सवाल है। तौबा, जी जी, अल्लाह और अल्लाह में फरमा रहे मोहब्बत, जी हैं, जरा ऊंचे बोलो। मैं मोहब्बत पैदा करना, जी और, जी शाबाश, बहुत फर्स्ट क्लास, शाबाश। कल्ब का पहला एहसास है धड़कना, ठीक है। आप में से किसी का जवाब भी गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ एहसास नहीं कहा था। आपके सारे जवाब दुरुस्त हैं, क्योंकि आपने जो कुछ मैंने ट्रेनिंग दी हुई है उसकी रोशनी में आप सारे बोले हैं, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल कामिलन दुरुस्त है। मैंने सवाल ये किया था कि कल्ब का पहला एहसास क्या है? धड़कना। तो आपने कल्ब के पहले एहसास को जिंदा करना है, क्या? धड़कन। अब इसमें एक तस्वुर रखना है, सिर्फ हार्ट बीट तो स्टेथोस्कोप से भी आप महसूस कर सकते हैं। हार्ट बीट, इसका अंग्रेजी में हार्ट बीट कहते हैं ना, धड़कन को हार्ट बीट कहते हैं। बाज़ बुजुर्ग लोग कहते हैं बीट बीट कह रहे थे, अब पता नहीं क्यों क्या होती है, तो करा उर्दू वाली बीट समझी बैठे तो और तो भाई की टी शर्ट समझ, ठीक है, ठीक है। तो कल्ब का पहला एहसास है धड़कना। अब कल्ब का आम आदमी के लिए कल्ब धड़कता है, सालिक के लिए उस आयत की रोशनी में कि जो हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, ठीक है। और उस आयत की रोशनी में, जिस अल्लाह ने अभी आयत करीमा फातिरुस समावाति वल अर्द, ठीक है, फातिरुस समावाति वल अर्द, कायनात की फितरतें बनाने वाली जात, और फितरत कायनात की अल्लाह की जात है, उसके अनवरात हैं, अल्लाह की जात की तजल्ली है, अल्लाह की सिफात की तजल्ली है। अब जो तजल्ली हम धड़कन के जरिए महसूस कर रहे हैं, यूं लगता है कि जैसे दिल कह रहा हो अल्लाह 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 अल, बोलिए ना, हाँ, अल्लाह 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 अल, ठीक है। अब आपने ये पहला एहसास कल्ब का जो है, इस आयत की रोशनी में कि फितरत कल्ब है जिक्र अल्लाह, क्योंकि कुरान से साबित है। फितरत कल्ब है तस्बीह इलाही, क्योंकि कुरान से साबित है। आपने अपने दिल को, अब आपने करना क्या है कि आपने यूं समझ लें कि आप अलग खड़े हैं और आपका दिल आपके सामने जिक्र कर रहा है, और दिल का जो ये जिक्र है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। यानी दो इधर सूरतें बन जाती हैं, एक ये कि आपने जिक्र किया और दिल को चलाया, और एक यह कि दिल जिक्र करके आपको चलाए। समझ बात में ज़हन में आ गई ना? यानी आपका काम, मसला आप एक पानी भरने लगे तो आपने एक स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करना चले ये आपकी पहली हरकत थी, लेकिन अब जब मोटर चल रही है तो वो हिल रही है ना, ठीक है। अगर वो मोटर किसी तख्ते पे रखी है तो सारे का सारा तख्ता हिलना शुरू हो जाएगा। अब जनाब मुतवज्जे होना, ये आप स्विच ऑन करते हैं, आपने हार्ट का, दिल का स्विच ऑन कर दिया। अब आप दिल की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब जनाब जो ही आपने स्विच ऑन किया तो वो करंट जो जिब्रील अमीन को मिला था, जो सरकार तक, कल्बे मुबारक तक पहुंचा, व इन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बे का, और सरकार ने सहाबा के सीनों में वो करंट चला दिया। वो करंट जब ऑन होता है तो पूरी कायनात सजदे में पड़ जाती है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वो करंट जो सहाबा ने फिर आगे
यहां तक पास ऑन किया, लहजा बलहजा मंजिल बे मंजिल चलता चलता आप तक पहुंचा है, वो सारे का सारा पूरा करंट ऑन हो गया है। ठीक है जी। और अब कल्ब आपको धड़का रहा है। ठीक है, यानी अब आप कल्ब की जद में हैं। इस बात को समझे, कल्ब धड़क रहा है और आप फड़क रहे हैं। और यूं लगता है 360 रगे हैं जो बुजुर्गों ने लिखा है। वैसे तो कोई हमारे बायोलॉजी के माहिर अगर यहां बैठे होंगे तो वो गुस्सा करेंगे कि 360 पे इत्तेफाक कर लिया, करोड़ों हैं। क्योंकि सिर्फ गुर्दे के अंदर जो रगे हैं इंसान के अंदर, उनको अगर एक लाइन में रखा जाए तो 40 मील बनती हैं। तो साइंसी बात है। तो यानी सिर्फ गुर्दे के अंदर इंसानी जो किडनी है उसके अंदर जो रगे हैं, यानी आले इल्म ने लिखा है कि अगर वही डायरेक्ट रखी जाए, सीधी की जाए तो 40 मील का फासला बनता है। तो इंसानी रगे करोड़ों के हिसाब से हैं। जिन लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है, इसके एनाटॉमी आहने होने हैं, तो वो ये जो इंसानी बदन का जो तज्जिया करना कि रगें कितनी हैं, हड्डियां कितनी हैं, पोस्ट कैसा है, बाल कैसे हैं, इंसानी बदन के रगो रेशा क्या क्या है, ये सारी चीजें समझ, इसको कहते हैं एनाटॉमी। अब उसको उर्दू में होता नहीं मुझे क्या, तशरीहुल अब्दान अल्लामा ने नहीं, लेकिन वो जी है इल्मुल अब्दान तो फिजियोलॉजी होगी ना। अब उर्दू का लास्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। एनाटॉमी यानी बदन की का तज्जिया और तालील। ठीक है ना। उसमें बोटेनिस्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो तो लिखते हैं कि बहुत सारी रगें हैं, लेकिन बुजुर्गों ने तकरीबन 360 रगें ट्रेस करके फरमाया है कि सालिक जब जिक्र करने बैठता है तो एक जिक्र के साथ 360 ज़रबें लगती हैं। ठीक है। अब वो सारी रगें जितनी भी हैं वो जिक्र शुरू कर देती हैं। जब आप इस कैफियत में पहुंचते हैं तो कल्ब के इस पहले एहसास के साथ आप जिक्र शुरू करते हैं। पहले यह था कि आपके अंदर कल्ब था, अब आप कल्ब के अंदर हैं। पहले कल्ब आप में था, अब आप कल्ब में हैं। ठीक है। जब यह कैफियत आती है तो फिर आपके कल्ब के ऊपर दूसरा एहसास नज़ूल करता है, एहसास सानी, दूसरा एहसास। और वो ये है, अगर आप जो आपकी हिस्स कवी है, मैंने ये बात बार बार की है, लेकिन अब मैं और एक नई जहत से आपको समझा रहा हूं। हजारों जहतें होती हैं कोई बात समझाने की। आपकी जो हिस्स कवी है, यानी अगर आप नजरी ज्यादा हैं, यानी देखकर चीजों को कैच करने के आदी हैं, आपके कल्ब में एक रोशनी उतरेगी, एक लाइट आएगी। बुजुर्गों का मुशाहिदा है कि वो जर्द रंग की होती है, ऑरेंज कलर की, ये संगतरिया रंग जो होता है। अगर आपकी कुव्वत शामा तेज है, यानी ये सूंघने वाली जो कुव्वत है, तो आपको खुशबुएं आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? आप पूछेंगे ऐसा क्यों होगा जी? तो याद रखें कि कल्ब असल में इंसानी रूह और बदन के दरमियान एक दरवाजा है। रूह की दुनिया का दरवाजा जब खुल जाएगा तो उधर की चीजें इधर जरूर आएंगी। ठीक है। अब आपके लाशऊर में या आपके पूरी जिंदगी की तजर्बात में जो हिस्स गालिब रही है, जिस हिस्स ने आपको ज्यादा इल्म दिया है और जिस हिस्स को आपने ज्यादा इस्तेमाल किया है, वो हिस्स गालिब आएगी। क्योंकि आप मरकज़े एहसास की तरफ बढ़ रहे हैं ना, एहसास के मरकज की तरफ। तो ये एहसास है दूसरा, ये दूसरे एहसास की पर बात करने लगो। अच्छा, अब जनाब आपने क्या किया कि अगर आपकी कुव्वत सामिया ज्यादा गालिब रही है, गाने ज्यादा बुझे हैं,
यानी अच्छी आवाज़ अच्छी लगती हो, या नात खानों को ज़्यादा सुनाओ, अच्छी तकरीर करने वाले बुजुर्ग कोई आलिम दीन है उनको सुनाओ। आवाज़ को आपने ज़्यादा अहमियत दी, आवाज़ों को, साउंड को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो साउंड आपको कल्ब में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका जो कुव्वत हिस्सी गालिब है, यानी गर्मी सर्दी का एहसास, आपको कल्ब में या गर्मी महसूस होगी या ठंडक महसूस होगी। एक बुजुर्ग मुझे फरमाने लगे कि मेरे मुर्शिद करीम का विसाल हुए 40 साल हो गए, जब मैं उनके मज़ार पर जाता हूँ मुझे ठंडक महसूस होती है, मुझे आज दिन तक कोई बता नहीं सका कि ये मसला क्या है। मैंने कहा नक्शबंदियों के घर आते तो मैं पहले दिन बता देते। अच्छा, तो अगर आपके यहाँ एहसास और जो फीलिंग आपकी कवि है वो आपके ऊपर तारी हो जाएगी। बहुत सारे सालिक हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी कि खुशबुएं आती हैं। अब तो ये उकदा खुल गया ना कि खुशबुएं क्यों आती हैं, इसलिए कि आपका खुशबू वाली जो हिस्सा है वो गालिब है। अच्छा, आपको जो फैज आएगा अब वो खुशबू के रास्ते से आएगा, खुशबू के चैनल से आएगा। अगर आप नजरी हैं, विजुअल हैं, तो आपको रोशनी नजर आएगी, उस रोशनी में आप ट्रैवल करेंगे, आपका फैज जो है वो उस रोशनी के थ्रू आएगा। अगर आप कुव्वते समात के हवाले से ज्यादा अहसास वाक़े हुए हैं तो आपको मुख्तलिफ गैबी दुनिया की आवाजें सुनाई देंगी। बेशुमार सालिक, मेरे सालिक तो हर क्या, नौजवान भी जो टेलीपैथी के शौकीन होते हैं शुरू कर देते हैं, आगे गाइड करने वाला कोई नहीं होता। मेरे पास आए हैं कई दफ़ा कि जनाब आवाज़ें आती हैं कानों में, बंद करते हैं और बढ़ जाती हैं। भाई बंद क्यों करते हो? बगैर उस्ताद के, बगैर शेख के, बगैर मुर्शिद के कभी भी इन राहों पर नहीं चला जा सकता। ठीक है। गर्मी है, सर्दी है, उसकी फीलिंग के मुताबिक आपकी तरबियत की जाती है। हर सालिक की फीलिंग्स अपनी अपनी होती हैं। औलिया के भी इस बारे में तसरीहात मौजूद हैं, तफसीलात मौजूद हैं कि हर आदमी की फीलिंग्स अपनी अपनी होती हैं। अब अगर किसी साथी को खुशबू आए तो वो समझ लेंगे कि ये किस चीज़ का असर है। अगर रोशनी नजर आए तो जान लेंगे। इसी तरीके से बाकी एहसासात हैं, ठंडक है तब भी, गर्मी है तब भी। तो बताने का मकसद यह है कि जिक्र अल्लाह की उस फितरत इलाहिया के तहत आपने शुरू करना है। और चूंकि हर वक्त ये प्रोसेस जारी है तो आप लेटे उठते बैठते दिल धड़कना छोड़ता नहीं, आप जिक्र ना छोड़ें। और उसका आसान तरीन तरीका, आसान तरीन, जो मैंने कभी भी नहीं बताया, आज पहली दफा मेरी जिंदगी से, मेरी जुबान से अदा होने लगा। इस एतबार से आप अपने आप को जब भी मुराकबाई कैफियत में जाएं, ट्रांस की कैफियत में जाएं, इस्तिगराक की कैफियत में जाएं। अल्लामा ये बड़ी पते की बात है और अपने हर मुरीद को यह समझाना है। ठीक है ना। और तमाम सालिकीन को मैं ये अमर करता हूं कि जो मंजिल 10 साल में तय नहीं हो सकती 10 दिन में तय होगी और इंशाल्लाह होगी। इस बात को समझें। मैं अब क्या कहने लगा हूं, ये मैंने जोर लगाया इसीलिए कि मेरी, आप देखें गला बैठा हुआ, मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इस बात पर मैंने जोर लगा के बोला हूं। इस बात को समझें कि जब इंसान इस्तिगराक की कैफियत में, मुराकबे में चला जाए तो उस वक्त अपने आप को दी जाने वाली हर तरगीब, क्या बोलिए ना, अपने आप को दी जाने वाली हर तरगीब फौरी असर करती है। ठीक है। यानी अगर आप ट्वाइलाइट जोन में हैं, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्वाइलाइट जोन। ठीक है, ये पढ़े लिखे नौजवानों के लिए।
ट्वाइलाइट जोन वो होता है नींद और बेदारी के दरमियान का जो होती है स्टेट, उसको ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। या सुबह जब आप जागने लगे उस वक्त, ये बात मैं पहले करता रहा हूं, सुबह जागते वक्त आधी नींद और आधी बेदारी, तो उस वक्त में इंसान पर अल्फा शुआएं गलबा करती हैं। इधर भी जब इंसान सोने के बिल्कुल करीब होता है अल्फा शुआएं गलबा करती हैं। उस वक्त यहां तक तो आले नफ्सियात ने आपको बताया है कि अपने आप को जो तरगीब देंगे वो पूरा असर करेगी। और अंग्रेजों बेचारों के पास पूरी बाइबल बेचारी मिले तो कुछ करें, यहूदी सारा जहान अपने पीछे लगाए लगाए फिरते हैं या उनके पीछे पीछे फिरते हैं, और तौरात कहां से लाएं? अब उन्होंने एक जुमला निकाला है और उनसे बड़ा खूबसूरत सवाल भी बनता है। हो गया अल्लाह, कोई बात अभी मुकम्मल नहीं होती, वक्त इजाजत नहीं देता। कितने मिनट रहते हैं? हो गया। चल अजान पढ़ लें, उसके बाद फिर हम ये चंद बातें, मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद दुआ। तो अब मैं आज ये कर रहा था कि ईसाइयों बेचारों के पास और यहूदियों बहुत ही बेचारों के पास कुछ हो तो कौम को दें। तो अब वो वहाँ के यूरोप के जो साइंसदान हैं, रूहानी साइंसदानों ने इनको जुमला दिया और सारे के सारे पादरी वही पढ़ रहे हैं। जुमला क्या है? एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये इनकी कुल कायनात है। ये जितने इनके स्पिरिचुअलिस्ट है ना, जितने इनके वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, सारे के सारे यही जुमला दिए जा रहे हैं। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अच्छा, मैं हर रोज हर लिहाज से बेहतर बनता जा रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि इल्मी तौर पर यह एक बड़ा मजबूत जुमला है, और जो आदमी अपने आप को यह तरगीब देता है उसको फायदा भी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि अपने मजहब से तो रिटायर हो गए हो ना, कह सकते हैं ना। हमारे यहां कुरान अजीम शान में एक बहुत ही खूबसूरत चीज मौजूद है, या बदी अल अजायब बिल खैर। अच्छा, इस तस्वर के साथ बेहतरियों के साथ अजायबात का नजूल फरमाने वाले परवरदिगार, कितना खूबसूरत जुमला है, या बदी अल अजायब बिल खैर। हर वक्त खैर के अजायबात की तवक्को रखना, है? हर वक्त खैर के अजायबात की तवक्को रखना। तो जब इंसान ट्वाइलाइट जोन में हो या सुबह या नींद के पोटवारी दसे कंगोसा जिसके आहने हो, गुनूदगी, अब तो क्लियर हो गया ना। हाँ जी। तो बात साथी ऐसे ना कि जो कहते हैं पटवारी जी गल भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप गुनूदगी के आलम में, तो उस वक्त आप अपने आप को तरगीब क्या दें? इससे आगे की बात आप करने लगे हो जो मैंने पहले नहीं की कभी, जहां तक मैंने बातें की हुई हैं। तरगीब ये दें कि मेरे दिल की हर धड़कन के साथ मैं अल्लाह का जिक्र मेरे पूरे बदन में जारी होगा और मैं रब के करीब से करीब होता जाऊंगा। दिल की किस वक्त तरगीब देनी है? जबकि आप गुनूदगी में हैं, या सुबह जागे तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। वो पिछले दफा वाली याद है ना बात, तहज्जुद की नमाज पढ़ने आप उठे हैं, और अगर आप मुझ गुनहगार की तरह अगर तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सकें, तो आप सुबह की नमाज पढ़ने उठे हैं, तो आप अब उस वक्त गुनूदगी की हालत में हैं, नीम ख्वाबी की हालत में। तो उस वक्त अपने आप को यह तरगीब दें कि मैं दिल की हर धड़कन के साथ मैं अल्लाह और उसके महबूब के करीब होता जा रहा हूं। यह तरगीब। और जब यह तरगीब
آپ اپنے آپ کو دیں گے, آپ یقین کریں کہ منزل عشق بسے دور دراز است ولے طے شود جادہ 100 سال بیاہے گاہے در طلب کوش مدے دامن امید زدست دولتی ہست کے یابی سر راہے گاہے. یعنی ایک ایک سانس تو دور کی بات ہے نا, سانس میں کئی دھڑکنیں ہوتی ہیں. آپ اپنا ایک سانس پورا لیں اور دیکھیں اس میں کتنی دھڑکنیں ہیں. ہر دھڑکن کے ساتھ آپ رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. جو منزل, بڑا عجیب تصور ہے یہ, موجودہ سائنس نے اس پر مہر تصدیق لگائی ہے کہ جو ترغیب انسان ان وقتوں میں اپنے آپ کو دے, اور قربان جائیں سرکار مدینہ پر کہ آپ نے وہ ٹائم بھی اسپیسیفائی کر دیا کہ اس ترغیب کو تیز تر کرنے کا ٹائم وہ ہے جو 2 نیندوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, اور 3 دل جمع کر دو اور پھر دیکھو کہ کرم کے بادل کس طرح برستے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو حدیثیں تو آپ کو یاد ہے نا ساری. میرا کام صرف انڈیکیٹ کرنا ہے, رات کا دل, مومن کا دل اور قرآن کا دل. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں جمع کر دیں اور پھر دیکھیں اللہ کے رحمت کے بارشیں کس طرح برستی. تو یہ بات اب ذہن میں آ گئی کہ آپ نے دل کو جاری کرنے کے لیے جو فارمولے بزرگوں نے بتائے ہیں وہ تو بتائے ہیں, لیکن ایک فارمولہ میں آج اضافے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب آپ غنودگی کی حالت میں ہوں اس وقت آپ اپنے دل کو یہ باقاعدہ ترغیب دیں کہ میں اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہی اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دن رات میں 24,000 سانسیں انسان لیتا ہے, اور ایک سانس میں اگر 4 بیٹس بھی ہوں تو 1,00,000 بیٹس ہو گئی تقریباً. موٹا جیسا حساب کرو نا, تو 1,00,000 منزلیں انشاءاللہ ایک دن میں طے کریں گے میرے پروردگار نے چاہا. اگر دل نے یہ ترغیب قبول کر لی, اور کر لے گا کیونکہ اس وقت دل انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ غنودگی کا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں جو ترغیب آپ اس کو دیں گے وہ قبول کرے گا. یہی وجہ ہے کہ کوئی کینسر کا مریض ہے نا, میں آپ کو ایک خوبصورت سا عمل بتا دیتا ہوں ساتھ ہی. کوئی کینسر کا مریض ہے تو جب وہ سونے کے قریب ہو نا, نیم خوابی میں ہو, آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کے قریب کھڑے ہو کر آپ کہہ دیں کہ تم اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو رہے ہو. اور اس وقت یہ ترغیب یہاں تک کہ وہ ترغیب اس کے لاشعور میں چلی جائے, تم میری آواز سن رہے ہو اور تم اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو رہے ہو. پروردگار نے چاہا تو اس کا کینسر کا مرض چلا جائے گا. اور یہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس پر پریکٹیکل کر کے لکھا ہے. بچہ ہے, ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں, بچہ کام ہی نہیں کرتا, پڑھائی نہیں کرتا, امی کو روزانہ برا بلا کہتا ہے, میرے گریبان پکڑتا ہے. تو بزرگوں سے کہوں گا اپنا بچہ جب سو رہا ہو نا, سونے کے قریب ہو یا سو بھی رہا ہو, تو اس وقت ایک ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں جو سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے. اس بچے کے پاس یا ذرا سی آپ کی آواز وہ لمبی تقریر نہ کرے, بچہ جاگی پیسی, آپ نحمد و نصلی علی رسول الکریم نہ شروع کرے, آپ اس کے بچے کے پاس بیٹھ کر تو آپ ایسا سے کہیں کہ میرے پیارے بیٹے, میرے عزیز, تم میری بات سن رہے ہو, آہستہ بالکل. تم جب اٹھو گے تو میری یہ آواز تمہارے دل میں بیٹھ چکی ہوگی کہ آئندہ تم کبھی بھی نماز قضا نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, پھر آپ بچے سے کہیں کہ جو بھی ترغیب آپ دینا چاہیں کہ بیٹے آئندہ تم کبھی بھی کسی کی بے ادبی نہیں کرو گے. اگر تم نے میری ترغیب قبول کر لی ہے تو تم اپنا بدن کھجلاؤ گے, اور آپ حیران ہوں گے سویا ہوا بچہ اپنا بدن کھجلانا شروع کر دے گا. اگر تم نے میری ترغیب قبول کر لی ہے تو تم پہلو بدلو گے, اور آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ بچہ پہلو بدلے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی ترغیب قبول کر لی.
یہ میں بات ان دوستوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جن کے گھر میں کوئی ایسا عزیز رہتا ہو کہ جو کسی کی نہ مانے. ہاں بعض ایسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا, جنت بھی نہ گشنا. اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ اس طرح کے جو عزیز نکل آئے نا کہ نہ گشنا جنت کری گنو جی کرنا ہے. تو اس طرح کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا, ان کے علاج آپ کو آج میں نے بتایا. ٹھیک ہے, جب وہ سو رہا ہو, اگر غصے والا ہو تو احتیاط سے ترغیب دینی ہے. ہاں تو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ ترغیب دیں. اور اپنے لیے آپ کو جو میں نے بتایا کہ وہ یہ کہ دل کی بیٹ کو کہیں, دل کو کہیں کہ ہر دھڑکن کے ساتھ, ہر بیٹ کے ساتھ میں اپنے پروردگار کی طرف اڑتا ہوا جاؤں گا. اور آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کتنے زیادہ فوائد اس طریقے سے آپ کو میسر ہوں گے. اور یقین مانیں کہ میں نے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پورے سسٹم کا بیج آج اپنے آپ کے حوالے کر دیا. اس کی قدر کریں اور اس کو سمجھیں. اب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی محفل تک. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی الکریم الرؤوف الرحیم الآمین. الہ العالمین, ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں, ہماری حاضری اپنے جناب میں منظور اور مقبول فرما. الہ العالمین, تیری اس پیاری محفل میں ہم مسکینوں سے خیالاً, لفظاً, قولاً, عملاً یا فعلاً کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی عطا فرما. الہ العالمین, اس مبارک محفل کا جو کچھ بھی تیری بارگاہ پاک میں محبوب ہے, جو لمحہ, جو ذکر, جو کلمہ, جو تلاوت قرآن پاک, جو ذکر مبارک, جو کچھ کہا سنا, جس کی حاضری تیری بارگاہ میں محبوب ہے مولا کریم, ساری چیزیں ہم حضور شہنشاہ اولین والآخرین اپنے پیارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرتے ہیں. مولا کریم منظور اور مقبول فرما. الہ العالمین, ہمارے شہنشاہ دو عالم سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کے دستے مبارک سے ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک الہ العالمین تمام انبیاء و مرسلین ان کے ماننے والوں کو نصیب فرما. الہ العالمین, ہمارے شہنشاہ دو عالم سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کے دستے مبارک سے ثواب سرکار کے والدین کریمین کو عطا فرما. سرکار سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک الہ العالمین تمام انبیاء حضور تک جتنے بزرگ کے نوری نسب میں جتنے بزرگ گزرے ہیں, حضور کے خاندان میں جتنے بزرگ گزرے ہیں, ان کے سب کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب نصیب فرما. وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے. میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا, میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی